Good morning to all of you. We continue with the arrays. Today also we will go with the merging storing of the elements into a second array. Right. So yesterday we have discussed the array movement from front. One array was moving, the elements was picked up from front to end, and in second array the element was picked from back to front. This was the case what we did yesterday, and for that we have to use the counters, because in array, the storing array in which you are storing an element, that moves sequentially. Therefore the loop is been run as a 0 to the end, but the elements which is picked and stored is from back to front. Therefore I had used a counter to pick it from the last to the front. So depending upon the situation it may vary, so you have to be very optimistic. You must be very careful and try to analyze what's being asked to you and what has to be fetched out and what has to be written in. So hope so you are understanding it, and let's make it very clear. We will move on with the arrays again. Thank you. Let's move. Here we go with the programs. Web to input, and we have to input a first array of size 4 and second array again of size 4, and store the elements into third array. Let A array equals to, this is an example, 1, 2, 3 and 4. B array equals to 5, 6, 7, 8. Now the C array is going to hold a value like this: 1, 512, 4, 343, 9, 216, 16 and 125. This is it's going to hold it out. Now what is this 512? This is the cube of 8. This is 7 cube. 7 cube is 343. 6 cube is 216. 5 cube is 125. Now 1 square, 2 into 2, 4, 3 into 3, 9, 4 into 4, 16. Are you getting it? So we are going to write a program accordingly. Import java.util.strict class ABC, void main, scanner, system.in, scanner system.in, और उसके बाद एक लूप int आई, और तो कुछ नहीं चाहिए. int array equals to new int size 4, int b array equals to new int 4, int c array equals to new int 8. न्यू 98. ठीक है. नाउ फॉर लूप चला लेंगे. लेस देन 4i प्लस प्लस. एंटर एलिमेंट्स इन फर्स्ट array. Your phi equals to sc dot next int method
enter element in second array b of I equals to sc dot next empty method लूपन, ठीक है, फॉर I इक्वल्स टू 0। वही सबसे पहले इंक्लूडिंग इवन इंडेक्स, ठीक है ना। तो I लेस देन 8, I प्लस इक्वल्स टू 2, C ऑफ I इक्वल्स टू A ऑफ C1 इंटू A ऑफ C1 और C1 प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। काउंटर लेके लग जाए। Therefore I equals to 1, I less than 8, I plus equals to 2, C of I equals to, जो C2 होगा वो C2 की साइज कितनी हो जाएगी, C2 इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो B ऑफ C2 इंटू B ऑफ C2 इंटू B ऑफ C2, C2 माइनस माइनस हो गया स्टोर शुक्लन मस्ट अरे और I equals to 0, I less than 8, I plus plus शुक्लन C of I मेन क्लोज क्लास क्लोज। इसी तरीके से बोर्ड में मर्जिंग्स के क्वेश्चंस आते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया कोई, वेब टू इनपुट and array containing positive as well as negative value and arrange the elements like time elements together as per example। मान लो एग्जाम्पल एक एरे का हो गया, तो यहाँ पे 0 का 8 कर लो, 8 -1 3 -14 -7 -5 2 -1 6। if suppose array is like this, then in B array you have to arrange like this, इसको -11 कर दो, तो -1 -14 -7 -11, जितने माइनस एक साइड हो गए। अब 8 3 5 2 6 एक साइड कर देना, पॉजिटिव एक साइड कर देना, नेगेटिव एक साइड कर देना। तो ये कैसे होगा, import java.util.string। क्या एक क्वेश्चन को गिवन एरे टाइप का क्वेश्चन किए हैं क्या हम लोग? तो चलो ठीक है, क्लास ABC इसको ऐसे कर दो, इंपोर्ट काटो यहाँ से। एक क्वेश्चन उस तरीके से कर लो, वेब टू इनपुट ना, वेब टू गिवन एरे, ठीक है ना, गिवन एरे कंटेनिंग दिस। तो एक गिवन एरे है, सपोज एक गिवन एरे दिया हुआ, पहले से दिया हुआ, इसमें इंपोर्ट नहीं लगेगा। क्लास ABC कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट void main, ठीक है। तो स्कैनर की जरूरत है ही नहीं, इसमें इनपुट लेना नहीं है। तो यहाँ पे हम
एक एरे दिया हुआ int array इक्वल्स टू करली ब्रेसेस 8 -1 5 -14 -7 5 में 3 है 3 -7 5 2 -11 6 ये गिवन है। तो एक लूप के लिए चाहिए int i, एक लेंथ निकाल लेंगे इसकी l, ठीक है। तो l इक्वल्स टू a डॉट लेंथ, मेथड नहीं लगता, इस फॉर्मूला से इसकी लेंथ निकल गई। लेंथ माने कितने साइज निकल गया, ठीक है। यहाँ पे साइज हमको मिल गया, लेंथ से साइज निकल जाता है, ठीक। एक फॉर लूप चलाते हैं, i इक्वल्स टू 0 i लेस देन l i प्लस प्लस करली ब्रेसेस स्टार्ट। इफ अगर जो एलिमेंट मैंने पिक किया एक बी एरे भी बना लो सेम साइज का, स्टोर करेंगे ना सेकंड एरे में, एंटी बी एरे इक्वल्स टू न्यू आईएनटी लेंथ के बराबर ही होगा, ठीक है। ये बी एरे बन गया। लेंथ निकालने के बाद इफ ए ऑफ आई इज लेस देन 0 तब क्या होगा, बी का सी में काउंटर एक ले लो, काउंटर ले लिया सी की वैल्यू कर दिया मैंने 0, काउंटर ले लिया सी की वैल्यू कर दिया 0। ये बी ऑफ सी इक्वल्स टू ए ऑफ आई सी प्लस प्लस, यानी कि पहले इसमें से चेक किया नेगेटिव है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, आई आगे बढ़ गया। नेगेटिव मिला तो यहाँ 0 में स्टोर कर दिया बी के, फिर ये 1 हो, फिर नेगेटिव मिला तो 1 में स्टोर कर दिया, फिर नेगेटिव मिला 2 में स्टोर कर दिया, फिर नेगेटिव मिला 3 में स्टोर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से इसलिए काउंटर यूज हुआ है। तो एक लूप चलाकर पहले पूरे नेगेटिव को स्टोर कर लिया, फिर लूप चलाएंगे i प्लस प्लस इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन 0 तब b ऑफ c में स्टोर कर लेंगे a ऑफ i को c प्लस प्लस, उसको आगे बढ़ा लेंगे। अब जितने पॉजिटिव है तो यहाँ तक c कितनी कहाँ तक गया था, c गया था 3 तक गया था ना, तो 4th में b के 4th में a का 0 स्टोर हो गया, फिर b के 5th में 3 स्टोर हो गया। So plan arranged array for equals to 0 I less than L main close class keys। गिवन एरे का ऐसा प्रोग्राम है, स्कैनर नहीं चलेगा इसमें, राइट। तो फिर अब कल चलेंगे सर्चिंग सॉर्टिंग में कल चला जाएगा। थैंक यू।